Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today this video is about the streptococcal diseases. So let's start with the lecture. Streptococcal diseases. First we will discuss about the suppurative complications, means that the infection that includes pus formation. The first one is the respiratory infections. Respiratory infection, primary site of infection is throat causing sore throat. हमारे साथ जो स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज है उसमें हमारे साथ ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है जो डिजीज कॉज करता है. सो द फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमारे साथ पहला वाला सोर थ्रोट आता है. सोर थ्रोट इज बेसिकली जो हमारे साथ there are certain lesions, not lesions but the our जो हमारा थ्रोट अंदर जो थ्रोट का हिस्सा होता है वो हमारे साथ इन्फ्लेम हो जाता है और ब्लस्टर्स और इस तरह के दाने से नजर आते हैं और बहुत ज़्यादा सोर फीलिंग करता है. May be localized as a tonsillitis or pharyngitis. You will now see in a minute that what is tonsillitis or pharyngitis. And the lipoic acid covering surface villi binds to the glycoproteins fibronectin on epithelial cell of the pharynx. ये जो हमारे साथ बैक्टीरिया है उसमें these are gram positive bacteria or the lipoic acid and the villi that mainly binds to the epithelial cell of the pharynx and then releases its enzymes and different toxins and causing infection. And we have if you have not watched the video related to the pathogenicity and the um, pathovirus factor of the streptococci, so first watch those videos so then you can easily understand the diseases above the streptococcus in bacteria. So, and from the throat, it spread to the surrounding tissues, leading to the suppurative complication. Like the first one is the tonsillitis. When the bacteria enters our body through, we can say through air or through our mouth. So it mainly infect it produces sore throat. So the first one is the tonsillitis. So it can cause inflammation and infection in the tonsils region, the region where tonsils are present. So here, this is the region, and this white is the infection caused by this bacteria. So, and the other is the pharyngitis, as the name indicates. So a bit we can say टॉन्सिल्स के फिर थोड़े से नीचे के हिस्से में जो फेरिंग्स है उधर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है और इस तरह के ब्लिस्टर्स पेयर हो जाते हैं. And the other one is the quinsy. What is quinsy? So it is also infection in the pharynx area, mainly behind the tonsils region. And otitis media, it can also move to the air हमारे साथ जो air है उधर भी पहुंच सकता है due to the enzyme that are released by this bacteria, and it can easily move through the spaces and the bloodstream. So otitis media, what is otitis media? Inflammation of the middle ear. So वहाँ भी ये पहुंच सकता है और उधर डिजीज कॉज कर सकता है. Mastoiditis means that the infection in the mastoid region. ये जो हमारे साथ ये जो ear है, this is the ear, and this is the that the back of the area of the ear is mainly it is known as mastoid area. So इधर भी हमारे साथ otitis media के बाद अगर इजीली ये मूव कर सकता है और इधर भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है और पस फॉर्मेशन हो सकती है. So this was about the respiratory infection. Why it is called respiratory infection? Because these all area are included in the respiration. So इसीलिए इसको respiratory infection कह सकते हैं. And skin and soft tissue infection. So it can also cause skin and soft tissue. ये हमारे साथ मूव करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करके हमारे साथ अदर टिश्यूज में भी जा सकता है और स्किन में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. मेनली जो हमारे साथ फर्स्ट रूट जो है तो वो
अगर बाहर से अगर हमें कोई कट नहीं लगा और ब्लड स्ट्रीम के जो बाहर से बैक्टीरिया अंदर नहीं आई है और माउथ से या नेसल कैविटी से अंदर चला जाए, तो ये सबसे पहला रूट होगा इस कैन बैक्टीरिया कैन इजीली एंटर आवर बॉडी। और अगर हमारे साथ कोई और इट कैन देन लीड टू द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एज वेल। और इस तरह भी हो सकता है कि अगर हमारे स्किन में कोई कट लगा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है और हमारे साथ कोई इन्फेक्टेड चीज़ है और वो उसके कांटेक्ट में आ जाए, so this bacteria can then easily transfer to the blood and it can cause diseases in the soft tissues and the skin. So हमारे साथ स्किन इन्फेक्शन में फर्स्ट वन इज द इम्पिटिगो। और आई हैव अरेंज दिस डिसऑर्डर्स ऑन इन 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 अ स्पेसिफिक ऑर्डर के हमारे साथ जो पहला वाला इम्पिटिगो है, तो ये सिर्फ बाहरी स्किन का जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, एपिडर्मल हिस्सा है, उसको इन्फेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन करती है। जो what is impetigo? It is also pyoderma. Pyoderma means that pyo means pus and derma means pus in the skin. So it is caused by high number of M type of Streptococcus pyogenes. We all know that Streptococcus pyogenes is a main bacteria that can cause infection in the human being. So superficial discrete crushed spot of less than 1 inch diameter seen in children, ये जो हमारे साथ ये है क्रश सुपरफिशियल और 1 to 2 जो 1 इंच या 2 इंच का एक एरिया है जो हमारे साथ स्किन क्रश हुआ है और उसमें पस फॉर्मेशन हुई है, तो ये भी हमारे साथ इसको इम्पिटिगो कहते हैं। और ये तकरीबन 1 to 2 वीक्स के बाद स्पॉन्टेनियसली हमारे साथ ये कवर हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन। नाउ कमिंग टू द एरिस्पेलाइस, एरिस्पेलाइस ये जो है दिस इज मेनली जो स्किन है ये थोड़ा सा अंदर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कॉज कर लेता है। द इम्पिटिगो इज बेसिकली द वेरी आउटर मोस्ट जो लेयर्स है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर भी स्किन के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज करता है a bit under the skin. Then what is erythros? It is red and pale means skin. So ये जो हमारा जो स्किन है ये रेड हो जाती है। और what are the causes? So it is cause acute spreading lesions involving superficial lymphatic and healthy skin. हमारे साथ जो स्किन में जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो डिफरेंट वेसल्स और इसको इन्फेक्ट करती है, लिम्फ नोड्स को, स्किन वाले लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करती है। और इट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, जो रेडनेस कॉज होती है वो इन्फ्लेमेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के थ्रू ये कॉज होती है। सो द इम्पिटिगो इज अ बिट आउटसाइड ऊपर वाले हिस्से में, और फिर एरिस्पेलाइसिस थोड़ा सा स्किन के अंदर में इन्फेक्शन कॉज करता है। नाउ कमिंग टू सेलुलाइटिस एंड नेक्रोटाइजिंग फेसिलाइटिस, ये जो है ये फिर स्किन के और अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्वॉल्व डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यूज, लोकल इन्फ्लेमेशन इन सिस्टमेटिक साइंस लाइक एरिस्पेस एंड ऑब्जर्व। तो इसी तरह हमारे साथ ये भी रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, लेकिन इट इज़ अ बिट मच मोर डीपर इनसाइड द स्किन। एंड दिस वन इज द नेक्रोटाइजिंग फेसिलिटीज, ये जो है एम टाइप है 1 and 3 फॉर्मिंग पायरोजेनिक एक्सोटोक्सिन। तो ये फिर जो है जस्ट लुकिंग टू द जो इमेज है, तो ये देख ले ये बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर चला गया है एंड इट कैन ऑल्सो हमारे साथ मसल तक इसने अपने आप को पहुंचाया हुआ है। एंड द लास्ट वन इज द फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया ये जो बिल्कुल सीवियर केस होता है और हमारे साथ जो बिल्कुल स्किन के साथ साथ मसल्स को भी इन्फेक्ट करता है, और तो इस तरह इन्फ्लोमेशन और पस फॉर्मेशन करता है, तो ये सबसे फेटल जो है कंडीशन होती है। एंड इट इज़ मेनली ट्रीटेड बाय पेंसिलिन जो है ये इसको इसमें इफेक्टिव नहीं है। एंड वेनकोमाइसिन जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है, सो इट व्हेन वेरी मच लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में इसको ये लोगों को देते हैं कि ये इन्फेक्शन कवर हो जाए।
So this was all about the infections and the diseases caused by streptococcus and species जो हमारे साथ we can divide it into two parts जो है streptococcal summarizing it respiratory infection में हमारे साथ tonsillitis, pharyngitis and quinsy otitis media mastocytitis ये वाले इन्फेक्शन हमारे साथ कॉज करते हैं क्योंकि एज द नेम इंडिकेट इट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और जब हमारे साथ स्किन वाले इन्फेक्शन है तो ये इम्पिटिक और स्फिलाइसिस और सेलुलाइटिस और फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया. So hope you understand it well, and if you have any question you can ask me in the comment box. Thanks for watching. God bless you. Thank you very much.